So we are going to start our this topic based on conversions of solid from one shape to another. It will cover exercise 13.3 from NCERT. Here, अब आपको ये देखना है how we do conversion from one shape to another. Conversion कैसे भी हो सकता है, by chemical process और by physical process. हम एग्जाम्पल लेते हैं फिजिकल प्रोसेस का. We can take example of clay. क्ले को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब ये बताइए, जब हम एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं, क्या चीज कांस्टेंट रहती है? क्वांटिटी ऑफ क्ले. आप उस क्ले का चाहे स्फेरिकल बॉल बना दें या फिर उसे आप कन्वर्ट कर दें एक फ्लैट रेक्टेंगल शेप यानी क्यूबॉइडल में, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ विड्थ तो रहेगी. तो यानी आप चाहे उसे स्फेयर बनाएं क्ले को मोल्ड करने के बाद, या फिर उसे आप क्यूबॉइड बनाएं, क्ले की क्वांटिटी सेम रहेगी. एंड दैट क्वांटिटी कंस्टिट्यूट्स वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम सेम रहता है जब आप एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं. तो इसका मतलब आपको यहाँ यही कॉन्सेप्ट लगाना है, वॉल्यूम रिमेन्स सेम. तो कोई भी कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा, आपको बस यही माइंड में रखना है कि जो पहली शेप थी उसकी वॉल्यूम बराबर रहेगी सेकंड शेप की वॉल्यूम के. उस हिंट से आप आंसर्स के सॉल्यूशन निकालेंगे क्वेश्चंस के जो गिवन होंगे आपको. आप एग्जांपल देखो बेटे, इस पर जो बेस्ड है. फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल 8 बेस्ड ऑन कन्वर्जन. इसमें गिवन है, रीड आउट द लैंग्वेज. A cone of height 24 centimeter. That means in starting there was a cone with height 24 centimeter. So that is 24. This one is diameter and radius is given as 6. So that means this distance is 6 centimeter. A child reshaped it in the form of a sphere. यानी ये पहले से कोन शेप में था, अब उसे मोल्ड करके कहाँ कन्वर्ट कर दिया है, एक स्फेरिकल शेप बना दी है. आपको ये बताना है व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. जो स्फीयर तैयार होगा उसकी रेडियस कितनी होगी. सो कैन आई सपोज इट एज कैपिटल आर. सपोज कर सकते हैं ना. सो लेट कैपिटल आर बी रेडियस ऑफ स्फीयर. ठीक है. Here what is given? Height and radius of cone is given. So we will write height of cone h is equal to 24 centimeter and then radius of cone, that is a smaller 6 centimeter. Now according to question, since we are converting from cone to sphere, quantity यानी volume same रहेगी दोनों की. So I can write volume of cone is equal to volume of sphere. So whenever you have question on conversion, आपको बस previous volume को new volume के बराबर रखना. बाकी जो आंसर्स आएंगे वो आ जाएंगे आपके by keeping the values. वैल्यू बताइए क्या क्या रखनी है. पहले हम फॉर्मूला ओपन करते हैं. कौन का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का? 1/3 by. We know we will take small r and h for cone. So take care of it. Small r square h is equal to volume of sphere 4/3 pi capital R cube. Any problem? No. We can cut 3 from 3. Yes, ma'am. And pi to pi. यहाँ रह गया आपका r square h and then 4r cube. Let's put value. Small r कितना है आपका? 6. So 6 multiply 6 into height of cone 24 is equal to 4 into r cube. Can I do 4 6 are 24? कर सकते हैं ना. अब देखो बेटी 6 3 टाइम्स है, तो ऐसे में 6 to the power क्यूब लिख सकती हूँ उसे r cube. डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है. So I can write capital R is equal to 6. That is capital R is equal to 6 centimeter. Hence radius of new sphere that will be formed will give us 6 centimeter. समझ में आया? Any doubt? Note this question. So now example 9, in which it is given that Selvi's house has an overhead tank in the shape of cylinder. Selvi is a girl जिसके हाउस के ऊपर टेरेस पर एक सिलेंड्रिकल शेप का टैंक रखा हुआ है.
which has to be filled by pumping water from a sump underground tank, जिसमें पानी फिल करना है अंडरग्राउंड टैंक से in the shape of cuboid. The sump has dimension 1.57 meter by 1.44 meter by 95 centimeter. Sump की dimension given है. It is written length of sump L is 1.57 meter, breadth is 1.44 meter, height was 95 centimeter. So I have converted into meter by dividing by 100. तो ये convert होगी हो जाएगी 0.95 meter. Now it is given that overhead tank has its radius 60 centimeter. जो ऊपर टैंक रखा हुआ है उसकी रेडियस है 60 सेंटीमीटर. सो देखिए यहाँ रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट किया है डिवाइडिंग बाय 100. तो 60 अपॉन 100 क्या हो जाएगा 0.6. अब हमने किया हाइट ऑफ टैंक वाज 95 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर देखो हाइट ऑफ टैंक 95 थी, 95 अपॉन 100 किया 0.95. इसे भी हमने मीटर में कन्वर्ट किया है क्योंकि कैलकुलेशन तभी स्टार्ट होती है जब उनकी यूनिट सेम. तो हम लोगों ने सब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया. नाउ इट इज गिवन दैट फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द sump आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज कंप्लीटली फुल. इट इज कंप्लीटली फिल्ड एयर. इसमें ये बोला है अगर हम इस sump से ऊपर पानी फिल करें तो कुछ टाइम बाद यहाँ से तो पानी का लेवल गिर जाएगा और वहाँ ये बढ़ जाएगा. पानी फिल हो रहा है यहाँ से ऊपर जा रहा है तो एक टाइम के बाद ये टैंक पूरा फिल हो जाएगा ऊपर वाला. ठीक है. अब आपको ये बताना है जब ये पूरा टैंक फिल हो गया है तो इसमें पानी का लेवल नीचे आएगा तो कितनी पानी की हाइट रह जाएगी उस टाइम पर. बात समझ आ रही है. यानी नीचे वाला टैंक जब ऊपर का पूरा फिल कर देगा तो जैसे कि पूरा फिल है ऊपर तक, अब इसका पानी का लेवल नीचे गिर जाएगा ना क्योंकि इतना पानी ऊपर दे चुका है. तो आपको न्यू हाइट बनानी है. अभी तो प्रेजेंट हाइट कितनी है इसकी 0.95 है ना, लेकिन पानी फिल करने के बाद ऊपर हमारे टैंक में जरूरी थोड़ा नीचे आ जाएगा तो इसका लेवल डाउन होगा. उस न्यू हाइट को आपको आइडेंटिफाई करना है. अब आप बताइए कैसे इसे हम कर सकते हैं. बताइए गिव आइडिया. देखिए हमें मालूम है ये जो पानी का लेवल नीचे डाउन हुआ है इतना पानी इसमें से खत्म कितना हुआ है जितना इसको दिया है. अगर आपसे पूछा जाए रिमेनिंग वाटर कितना रह गया है तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम. फिल करने के बाद जो सम्प में पानी रह गया है कितना रह गया है टोटल सम्प में से सिलेंडर वाला जो सिलेंड्रिकल टैंक में फिल किया उसे माइनस कर देंगे तो लेफ्ट आ जाएगा. यानी इसमें तो टोटल था वॉल्यूम ऑफ सम्प के बराबर, माइनस करना पड़ेगा जितना यहाँ से पानी वहां पहुंच चुका है यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक. क्योंकि जितनी टैंक की वॉल्यूम थी उतना उतना ही तो पानी अपने अंदर लिया होगा. अब बताओ बेटे फॉर्मूला. वॉल्यूम ऑफ सम क्यूबॉइड शेप है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. अब हमने सपोज किया हुआ है कैपिटल से तो आप लोग भी यहाँ कैपिटल लिखेंगे L इनटू B इनटू H माइनस सिलेंड्रिकल टैंक की वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h और यहाँ देखिए हमने स्मॉल r स्मॉल h लिया है तो ये हो जाएगा पाई स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h. कैन यू कैलकुलेट. वैल्यू पुट करनी है. देखो L की वैल्यू कितनी है लेंथ इज 1.57 यहाँ पे लिखा है देखो 1.44 मल्टीप्लाई हाइट 0.95 माइनस पाई we have to use 3.14. So 3.14 into radius square. Radius of cylinder 0.6 into 0.6 means 0.6 square multiply height 0.9. Now you have to calculate. Do it fast. Calculation कीजिए मुझे बताइए वैल्यू कितनी आ रही है. On multiplication we got 2.1476 and then from this side 1.07388. After subtraction इसमें से हम जब भी माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.07388. अब देखो बेटे यहाँ क्या चल रहा है लेफ्ट साइड में. लेफ्ट साइड में लैंग्वेज चल रही है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम यानी जो सम में पानी रह गया है. आपसे फॉर्मूला पूछूं क्या होगा. क्या वॉल्यूम ऑफ सम का फॉर्मूला वही रहेगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. लेकिन क्योंकि पानी का लेवल अब गिर गया है तो हाइट में फर्क पड़ेगा. क्या लेंथ और ब्रेथ सेम रहती है. टैंक में अगर पानी का लेवल कम होता है तो नीचे तो पानी इतना ही रहता है बस हाइट कम होती है. तो यानी न्यू लेंथ को हम लिख सकते हैं यहाँ कैपिटल L ही लिखेंगे क्योंकि वो सेम है. ब्रेथ भी सेम है लेकिन हाइट कितनी हो गई है h डैश हो गई है और इसी की वैल्यू बराबर है 1.07388. फटाफट वैल्यू पुट करो और आंसर बताओ. So we are doing here
Length is equal to how much? It is 1.57 multiplied. Breadth is same 1.44. New height we have considered h dash, जो पानी का लेवल नीचे डाउन हुआ है, is equal to 1.07388. So new height is equal to 1.07388 upon 1.57 1.44. So now on solution of this, on solving this problem, it is equal to 0.475 मीटर. इतनी आएगी आपकी हाइट. पहले 0.95 थी ना, तो अब कम होके 0.475 रह जाएगी. ठीक है, वो हमने सेंटीमीटर में लिखा हुआ आंसर तो हमने कन्वर्ट करके लिखा था बात. तो आप इसे नोट कर लीजिए. न्यू हाइट हो जाएगी. अब इस क्वेश्चन में लिखा है कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ सम. कंपेयर करने का मतलब होता है आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है. किसका? जो ऊपर वाला टैंक है अपॉन सम. तो आप लोग क्या करेंगे इसे आगे, आप लिखेंगे आगे वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ सम. दोनों को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. रेशियो पे वॉल्यूम लिखनी है, ऊपर आप सिलेंडर की वॉल्यूम लिखेंगे, नीचे डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सम. कैंसिल करना, आपका आंसर आएगा इसमें 1/2, यानी हाफ कैपेसिटी है. हाफ कैपेसिटी का मतलब ये वाला टैंक इसका आधा है, यानी जितना पानी इसमें आ सकता है उसका आधा ऊपर फिल हो जाएगा. कर लेंगे इसे आप. अब होमवर्क में आपको करना है बेटे एग्जांपल 10 ट्राई. यू हैव टू ट्राई एग्जांपल 10 along with question number 1 2 3 4 5 and 6. आप लोग ट्राई कीजिएगा आपको क्वेश्चन नंबर 6 और नेक्स्ट एग्जांपल विद 7 8 9 हम करेंगे कल. ठीक है, सो कंप्लीट दिस एक्सरसाइज अप टू क्वेश्चन नंबर 6.